Welcome back to the weekly webinar of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Well, we are here with the introduction now. So, let me introduce Rajlakshmi Solutions Private Limited. We deal with multiple software and services. So, specifically, when I talk about software, let's get into in detail. So, what are the software Rajlakshmi deal with? Basically, we deal with Tally Prime, an accounting software, and we are part of SAP Business One, a key for every business solutions, and we are part of Bitrix CRM, customer relationship management software, which is very very useful to handle the task, deals, reports, etc. And we are part of Skill India, the government project which is specifically concerned for the education and employment of students. Well, these are the few softwares which we deal with. In this pandemic, we came up with multiple other softwares as well, that is Tally on Cloud specifically. Sit anywhere and everywhere, but be onto your job without any kind of distraction. So that is by sitting anywhere and everywhere, you can use this particular Tally on Cloud software and enjoy your work and enjoy your office space as well. Advisory services, yes, again it's a question mark that what is this advisory is nothing but the business which is distracted or which is in the process, but due to certain circumstances it is not. Let's say there might be scenarios wherein there is no right software or right system or right process, which really took a distraction in the business process. So we are here to just help you to choose the right software and the right system, and we are part of organizational design as well. So we work for 360-degree angle, and we completely provide the solution as well for. And moving ahead to with the webinar, so we do have multiple people here, but yes, today we are on to the topic. Moving to new topic, I can say, financial year, it is very very essential that we have to completely check out with the to keep a right system and the process in the organization, we are supposed to move to the new part towards the financial year and Taliban. So let's see ahead how this moved out on Taliban software and how much this is beneficial for us to maintain the records in detail for long years. Hello, good evening, everyone. Myself, Priyanka Prajapati, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. Next slide. Here is the family of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Today, we will see how to change financial year or move to the next financial year in Tally Prime, data split and their advantage. So let's start the today's session. First is how to change financial year. With Tally Prime, you can quickly close books of accounts for a financial year and move your company data to next financial year. You can achieve this in multiple ways in Tally Prime, handling your tax liability or input credit when company data is split at the beginning of the new financial year. Tally Prime के थ्रू आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फाइनेंशियल ईयर इजीली चेंज कर सकते हैं एंड ऑल्सो शिफ्ट योर फाइनेंशियल ईयर डेटा टू नेक्स्ट ईयर. With the help of Tally Prime, आप आपकी कंपनी का टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट क्रेडिट इजीली मेंटेन कर सकते हैं. So move to the next slide and discuss how to split company data in Tally Prime. That is, Tally Prime comes with a useful tool called Split, which will help you manage the volume of your data. If your business like a fresh start every financial year, then you can split your data and maintain a fresh batch. इन अ टैली प्राइम विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट ऑप्शन आप आपकी कंपनी के डेटा का वॉल्यूम इजीली मेंटेन कर सकते हो. एवरी फाइनेंशियल ईयर आप आपकी कंपनी का डेटा स्प्लिट एंड मेंटेन कर सकते हैं फॉर अ फ्रेश बैच. बिफोर स्प्लिटिंग डेटा, द वेरीफाई फीचर्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एनी एरर इन डेटा एंड अलाउ यू टू करेक्ट देम क्विकली. डेटा स्प्लिट करने से पहले वेरीफाई फीचर्स हमें ऑटोमेटिकली कंपनी में जो भी एरर्स हैं उसे डिटेक्ट करता है और उसे करेक्ट करने में हेल्प करता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी सम एडवांटेज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डेटा. फर्स्ट वन इज रिड्यूस डेटा साइज. मल्टीपल ईयर डेटा will tend to make Tally work slow.
splitting of data will reduce data size and increase the speed. Splitting of data आपके डेटा की साइज को रिड्यूस करता है. इफ अगर आपका मल्टीपल ईयर का डेटा है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी टू वर्क द टैली स्लो, बट डेटा स्प्लिट करने से डेटा का साइज रिड्यूस होता है एज वेल एज स्पीड भी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट इज secure old data and start work in different folder. Splitting of data will ensure the security of data to the previous year. आप अपना डेटा सिक्योर कर सकते हैं और अपना वर्क डिफरेंट फोल्डर्स में स्टार्ट कर सकते हैं एज वेल एज आपका प्रीवियस ईयर का डेटा भी सिक्योर रहता है. नेक्स्ट, इन अ टैली प्राइम with the help of splitting of data, you can maintain separate folder for each financial year. And the last is security setup will automatically carry forward in the next new financial year with the splitting. जो आपका सिक्योरिटी सेटअप है वह ऑटोमेटिकली टैली प्राइम में न्यू कंपनी स्प्लिट करने से कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. So this was all about new financial year in Tally Prime. Now it's end from my side. Over to you, Diksha. Thank you. Thank you so much, Priyanka. Nice presentation. Good evening, everyone. My name is Diksha, representing Raj Lakshmi Solutions Private Limited. First of all, welcome to New Year Financial Year 2022-23 to all of you. So let's start the practical session of new financial year in Tally Prime. My screen is visible, ma'am? Hello. Yes, Diksha. Yes, it's visible, Diksha. Yes, ma'am. तो जैसे कि प्रियंका मैम ने बताया है कि डेटा स्प्लिटिंग कितना इंपॉर्टेंट है न्यू फाइनेंशियल ईयर्स में. पहले तो ये डेटा स्प्लिट होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है और ये क्यों करना है, ये सारी चीजें पहले समझ के लेते हैं. पहले तो इसको करना क्यों है, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल ईयर्स जो आप कंटिन्यू एक ही कंपनी के अंदर कर रहे हो उसको डिवाइड कर देते हो या फिर बाइफरकेट कर देते हो, तो आपका जो स्पीड टैली में आप जो काम कर रहे हो वो एक अच्छा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है. तो ये एक अच्छा बेनिफिट आपके लिए है. सेकेंड चीज ये है कि आप जब भी नया फाइनेंशियल ईयर में काम करना चाहते हो तो आपको अलग से मास्टर्स क्रिएट करना है, इन्वेंट्री क्रिएट करना है, लेजर्स क्रिएट करने हैं. ये प्रोसीजर आपका बच जाता है, वो एक्सरसाइज आपका बच जाता है. तो ये आपको करना नहीं पड़ेगा जब भी आप डेटा स्प्लिट करते हो. ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं डेटा स्प्लिटिंग होता कैसे. फर्स्ट, जब भी आप डेटा स्प्लिट करते हो आपका कंपनी ओपन होना जरूरी है, मैंडेटरी है. आप जब भी प्राइम में काम कर रहे हो तो पहले तो आपको डेटा के लिए Alt Y बटन दिया गया है, आप प्रेस करते हो. यहाँ पे डेटा स्प्लिट के लिए स्प्लिट का बटन है. डेटा स्प्लिटिंग के लिए कैसे है, पहले तो प्रोसीजर ये है कि आपको पहले चेक करना है कि आपका डेटा प्रॉपर है कि नहीं, एंट्रीज आपने प्रॉपर किए है कि नहीं, लेजर्स आपके बराबर मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं. उसके लिए वेरीफाई डेटा ऑप्शन आपको दिया गया है. तो जब भी डेटा स्प्लिट होता है उसके पहले डेटा बैकअप एंड देन डेटा वेरीफाई ये कंपलसरी करना है. तो पहले हम लोग डेटा वेरीफाई कर लेते हैं. ये मेरा डेमो डेटा है, आप देख सकते हैं एक स्क्रीन ओपन हो गया है. यहाँ पे नो एरर्स फाउंड करके आ रहा है, यानी डेटा के अंदर अभी फिलहाल कोई भी एरर्स नहीं है, तो मैं डेटा स्प्लिट कर सकती हूँ. एस्केप करने के बाद फिर से डेटा के अंदर मुझे जाना है, Alt Y स्प्लिट इन स्प्लिट डेटा. यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कंपनी ऑटोमेटिकली जो ओपन है वही यहाँ पे दिखा रहा है. डेटा स्प्लिट फ्रॉम, डेटा स्प्लिट फ्रॉम यानी क्या होता है, आपको कहाँ से लेके कहाँ तक डेटा स्प्लिट करना है. अभी मेरा ये जो कंपनी है ये 2019 से चालू होता है और 2023 में खत्म होता है. तो मुझे अभी यहाँ पे जो भी ईयर से डेटा अलग करना है, जैसे कि 2019 से लेके मुझे 2023 तक का डेटा अलग से चाहिए, मुझे पूरा डेटा 2012 से लेके नहीं चाहिए. तो ये अलग से करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा स्प्लिटिंग का मुझे बटन दिया गया है. 1 अप्रैल 2019 का मैंने यहाँ पे पीरियड डाल दिया है. आप नीचे देख लीजिए नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी एंड नेम ऑफ सेकंड कंपनी. फर्स्ट कंपनी जो मेरा रहेगा वो अप्रैल 2017 से होगा, स्टार्ट होगा, एंड देन सेकंड कंपनी जो रहेगा वो अप्रैल 2019 से मेरा अलग से दिखने वाला है.
तो मैं यहाँ पे डेटा स्प्लिट कर देती हूँ। डेटा स्प्लिटिंग के टाइम आप देखोगे तो एक प्रोसेसर आता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका डेटा यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। तो स्क्रीन अभी मेरा टैली का ओपन है। यहाँ पे मेरा जो डेटा है ये तीन साल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। फर्स्ट जो मेरा डेमो डेटा है ये मेरा रेगुलर डेटा है, मेरा मेन डेटा है जिसके अंदर मेरा 2017 से लेके 19 तक का सारा डेटा। एंड देन सेकंड आप देखोगे ये 2017 से लेके 18 तक का डेटा है, एंड देन नेक्स्ट 19 से आगे तक का डेटा है। ओके, नाउ कि डेटा स्प्लिटिंग ये जो हम लोगों ने देखा है ये कंपलसरी है या नहीं। पहले तो कैसे है, इसको हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपलसरी करना ही है, क्योंकि कैसे है कि आप जब भी कोई भी नया फाइनेंशियल ईयर में काम करते हो तो आपका कितना टाइम बच सकता है और क्या प्रोसीजर आपको नए नहीं करने पड़ेंगे वो आपको देखना है। जैसे कि यूजर्स आप बनाते हो, जब भी आप मल्टी यूजर हो, आप यूजर्स आपके अंडर जो रहते 3-4 आपके सिस्टम में काम हो रहे हैं टैली के, तो वो यूजर्स आपको नए क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिक्योरिटीज नए क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका डेटा जब भी स्प्लिट होता है तो आपको अलग से लेजर्स क्रिएट करना, मास्टर्स क्रिएट करना ये जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा आपका जो बैलेंस शीट है या फिर आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड होता है आपके नए साल में जब भी आपका डेटा स्प्लिट होता है। तो ये आपका बेनिफिट है। आप मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, नया कंपनी क्रिएट करते हैं, मास्टर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस करते हैं, इन्वेंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो क्लोजिंग वैल्यूज जो रहते हैं वो हिलने के चांसेस 70% रहते हैं। तो इसके लिए डेटा स्प्लिटिंग ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि आप जब भी डेटा स्प्लिटिंग करोगे तो आपको कोई भी चांस नहीं रहेगा कि आपका डेटा में वैल्यूज या फिर कुछ अमाउंट का गड़बड़ हो गया है। तो ये बहुत सिक्योर भी है आपके लिए, और डेटा बैकअप तो ऑब्वियसली आप लेना ही लेना है। तो चांसेस बहुत कम रहेंगे कि आपका पुराना जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा उसमें कोई भी चीजें गलत नहीं होगी। देन नेक्स्ट अभी हम लोग नए कंपनी की बात कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि अपना प्रीफिक्स कैसे करना है। जब भी वाउचर्स आप क्रिएट कर रहे हो तो उसमें वाउचर नंबरिंग आप पिछले साल का जो वाउचर नंबरिंग है नए साल में वो कंटिन्यू मोस्ट ऑफ लोग नहीं करते हैं। तो उसके लिए कैसे आप प्रीफिक्स कर सकते हो या फिर प्रीफिक्स करने के बाद नेक्स्ट ईयर मुझे वो कैसे दिखने वाला है, ये सारी चीजें हम लोग अभी देख लेते हैं। पहले तो हम लोग सेल्स का एक वाउचर देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर्स के अंदर में जाती हूँ, सॉरी अल्टर के अंदर जाना है, देन वाउचर टाइप, यहाँ पे सेल्स का एक वाउचर ओपन करती हूँ। मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड लिया हुआ है, एंड देन एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस करती हूँ। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाल दिए हैं, मैं आपको समझा देती हूँ ये चीजें। यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 1, क्योंकि मेरा अभी नया साल है तो मैं यहाँ पे मेरा जो बिल बनेगा वो 1 नंबर से चालू होने वाला है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 डाला हुआ है। यहाँ पे प्रीफिल विथ 0, मुझे 0 के साथ चाहिए तो मैं इसको यस कर रही हूँ। देन यहाँ पे मैंने जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पे डाला हुआ है, मुझे एप्लीकेबल कहाँ से करना है वो यहाँ पे डाला हुआ है। देन स्टार्टिंग नंबर 1 रहेगा, ये ईयरली रहेगा। देन यहाँ पे सफिक्स डिटेल्स मैंने डाले हुए सेम, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, एंड यहाँ पे आगे मैंने डाला हुआ है /2022-23। तो ये जो मैंने सेटिंग्स किए हुए हैं ये अभी मुझे इनवॉइस में जब भी वाउचर नंबरिंग मेरा दिखने वाला है वो कैसे दिखने वाला है वो आपको बता देती हूँ। वाउचर्स जब भी मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट 1/2022-23, ये जो सेटिंग है ये बाय डिफॉल्ट मेरा आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है नेक्स्ट डे। जैसे कि मैंने अभी कोई भी एक एंट्री पास कर लेती हूँ, एक डमी एंट्री यहाँ पे
नेक्स्ट वाउचर मेरा ओपन हो गया है, वो जो वाउचर है वो लास्ट वाउचर 1 का था, अभी ये सेकंड वाउचर मेरा है, तो 2/2022-23 यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। ओके, जस्ट मिनट। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है, ये जो प्रोसेस रहेगा ये हर साल आपको करना है, क्योंकि आपका डेटा स्प्लिटिंग जो होगा या फिर वाउचर, आपके जो वाउचर नंबरिंग्स रहेंगे वो आपको कैसे करना है, तो ये सारी चीजें आपको जब भी ईयर चालू हो जाता है नया तभी आप कर सकते हो, या फिर आपका ईयर एंड हो जाता है तभी आप कर सकते हो, ये सारा प्रोसीजर। इसके अंदर और एक चीज मुझे एक याद आई है, मैं आपको बता देती हूँ। अभी जैसे कि ई इनवॉइसिंग नया आया हुआ है, 20 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर है उनको एप्लीकेबल हो चुका है। तो वाउचर नंबरिंग का जो बात हो रहा था, यहाँ पे आप जब भी स्टार्टिंग 002 या फिर 001 से चालू करते हो तो ये ई इनवॉइसिंग जनरेट नहीं होता है। ये एक पॉइंट मुझे अभी याद आया तो मैंने शेयर कर लिया आपके साथ। संपदा मैम, दीपा मैम, दैट्स एंड फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। Am I audible, Diksha? Can you please confirm me? Yes, ma'am. Audible. Yes. Yeah. Thank you, Diksha. It was wonderful presentation from your end, and a live demo from your end, and a presentation from from Priyanka's end. So this is all about today's session. So request you to please update if you have any questions. Request the spectators to please update if you have any questions on today's session. And beyond this, I would like to add on certain things that today, as I already said, today we don't have the product specialist or about the topic specialist, Mr. Bhagwati. Yes, Mr. Mustafa is having a question. Mr. Mustafa, can you please update your question in the comment section? Sampada, you can give access to Mr. Mustafa. He can even raise his question. Yeah, Deepa. Yes. Request others as well. If you have any doubts or questions, request you to please update your questions in the comment box, or else you can raise up your hands. We are ready to give you the privacy access, wherein you can raise up the question here as well. So yes, have you given the access, Sampada? Yes, Deepa, I have given access. Yes, Mr. Mustafa, request you to please unmute yourself. You have got the access now, and request you to raise your question. Yeah, madam, the last statement which he gave regarding that e-invoicing, the serial number, I'm not able to get that. Can you repeat that, please? मुस्तफा सर, गुड इवनिंग, दीक्षा बात कर रही हूँ। Yeah. मुस्तफा सर अभी कैसे हैं? गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला हुआ है, पहले कैसे था? Yes, I am aware of. Yeah, but नहीं, आपने क्या बताया उसमें सीरियल नंबर? अभी यहाँ पे ये जो वाउचर नंबरिंग जो है ना सर, जब भी ई इनवॉइसिंग आप करते हो, वाउचर नंबरिंग कैसे रहते हैं? मोस्ट ऑफ तो एक नंबर से चालू होता है, राइट? तो कोई लोग कैसे करते हैं कि जैसे हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं ना, तो उसमें हम लोगों ने देखा हुआ है कि 001 से चालू होता है, क्योंकि इनके इनवॉइसेस जो बनते हैं वो 3 डिजिट के भी आगे होने वाले रहते हैं। इसके लिए ये क्या कर रहे हैं कि 001 से इनवॉइसेस चालू कर रहे हैं, 001, 002 ऐसे। तो यहाँ पे अभी जब ई इनवॉइसिंग जनरेट हो रहा है ना, तो ये जो 00 आगे जो स्टार्टिंग जो 0 है ना, वो नहीं होना चाहिए। ये मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आपका 00 कोई भी 0 आगे से आप चालू कर देते हो इनवॉइसेस, तो आपका ई इनवॉइसिंग जनरेट नहीं होगा, वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा सर। Okay, so one of my client was having a question regarding उनके पास वो इनवॉइसिंग का सिस्टम उन्होंने जनरेट किया हुआ है फ्रॉम टैली, फ्रॉम देयर कंपनी wherever they have bought it, and they are also selling it from their counter sales. So they don't want to they will not be able to generate that invoicing for the person coming on the counter and taking the material. For that purpose, is there any other option? How can they bill them? सर कैसे है, वहां पे आप ना डिजिट्स डाल सकते हो। आप
एक नंबर से भी चालू करोगे इनवॉइसेस तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप गवर्नमेंट का एक रूल है, इनवॉइसेस जो आप बनाते हो उसके जो नंबरिंग्स रहते हैं वो अंडर 16 डिजिट होने चाहिए सर। तो आप उसके अंदर आप जैसे आपको लगता है आप फॉर्मेट एक बना सकते हो आपके हिसाब से। जैसे मैंने अभी अपना फॉर्मेट बताया 1/2022-23, ये मैंने अपने हिसाब से एक फॉर्मेट बताया था। एग्जैक्टली सेम आप आपके हिसाब से एक फॉर्मेट बना सकते हो अंडर 16 डिजिट और आप उसको अप्लाई कर सकते हो इनवॉइसेस के अंदर। ओनली स्टार्टिंग 0 नहीं होना चाहिए। और उनको आपके जो क्लाइंट है उनको एप्लीकेबल नहीं रहेगा इनवॉइसिंग तो वो बना सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। But how do they put the serial number in the billing? The continuous serial number with invoicing, or they want to start, say for example, they have a showroom, so where S1, S2 they start with new series. ऐसे भी कर सकते हैं सब। मोस्ट ऑफ कैसे रहता है ना, सेल्स में GSTR 1 रहता है, तो आप जब भी आपका रिपोर्ट देखते हो तो वो सॉर्टिंग करने के लिए इजी हो जाता है। इसके लिए मोस्ट ऑफ हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपके जो इनवॉइसेस रहते हैं सेल्स के, तो उसको आप सीरीज वाइज ही लेके जाओ। ओके, और उसको डालना कैसे है, तो आपको वाउचर अल्टर करके ही आपको अपडेट करना है सब। Okay. Yes. All right. So altogether, Mr. Mustafa, see, there might be chances wherein you can get the customized solution for this. Okay. जैसे अब अपने client के लिए बता रहे हो, so request you to do connect us personally. We can understand your client scenario, might be multiple client scenario, and then we can just give you a personalized solution as well for this particular issue. Thank you. Perfect. Thank you so much, Mr. Mustafa. All right. Thank you, Diksha, for your response. Is there any other questions? Request you to please raise up your questions, people. All right, this is the second session what we have done. Last week also we did the same session before last week by customers' demand. So today also we took up by customers' demand itself. So as of now, I'm unable to find any question here. But anyways, request you to please do connect us if you have any questions onto this particular topic. We are open here to just serve you about this topic, or else about your client solution, or else any customized solution, or for any kind of solutions. We are here to refer you the right software and the right system and the right organizational design. So that's it for today. So Diksha and Priyanka, do you have anything to be added over to this? No, ma'am. No, ma'am. Thank you so much. No, right? All right. Perfectly. Thank you. Thank you so much, Diksha and Priyanka, for your wonderful presentation. And as of now, I'm not finding any questions. So I'm here to end up the session. But anyways, if you find any questions, request you to please check out our YouTube channel. Shortly, by a couple of days, this video will be uploaded in YouTube channel as well. And do subscribe our YouTube channel to follow the movements and the actions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. And we do have a strong presence in all the other social medias as well. So it's the right time. Do check out all the other mediums as well. And apart from that, do check our website. And if you have any questions, there are multiple modes to connect us directly through number, through chat, through WhatsApp, etc. So do connect us by any mode. That's it for today. Thank you so much. Stay tuned and see you soon in next webinar. Thank you. Take care and bye-bye.